In civil services, reforms are being brought slowly and speedily. दोनों तरीके से. So expect a question on civil services. अब देखिए आप, for example, मोदी जी क्या बोले? मोदी जी said that अभी right now, if you become joint secretary, chances are that you are an IAS. Okay, government of India में आप joint secretary बन गए, IAS बन गए. You joined as IAS as SDM, then you became DM, then you became director, then you became deputy secretary, joint secretary, ऐसे बढ़ते चलेगा. But government says now on at this position of joint secretary, we need not make everybody joint secretary who is an IAS only. We can pick up somebody from outside. We can make a person who is an expert in economics and directly make him joint secretary in Ministry of Finance. Let's say I am teaching economics in IIT, or let's say I am teaching economics in IIM. Government can pick me up for my knowledge of economics and can directly make me joint secretary in Ministry of Finance. Now understand this thing, I am not an IAS, but when I enter the government service, from non-government domain, this is called as lateral entry. Lateral entry was in news for number of reasons. So expect a question on lateral entry or expect a general question on the role of civil services. Okay, अब मोदी जी ने क्या बोला? He said number of services should be abolished. अभी हाल ही में अगर आपको मालूम हो, there are some changes, very subtle changes. अभी मैंने बोला ना, changes are coming slowly and speedily. Small changes are being made which are even not noticed. Engineering service से कुछ एग्जाम हटा दिया गया. Some jobs are removed from engineering service, right? And they are abolishing some posts. Military engineering service में इन्होंने काफी सारी पोस्ट खत्म कर दिए. They want to rationalize the civil services of India. So this, अभी जिसने भी आंसर दिया है, this is seen as a reform in civil services. So expect a question on civil services and particularly the areas which are in use. As I said, lateral entry. As I said, rationalization of civil services. Okay, अभी अगर आपने न्यूज पढ़ी हो, कल ही की न्यूज है that जम्मू कश्मीर में the provision has been brought कि if you are IAS or IPS in Jammu Kashmir cadre and any of your activity gives a smell that you are going anti-national. Let's say you're a senior IAS officer, you're a senior IPS officer in Jammu Kashmir, and what you have done gives a sense that this is against Indian interest, then sir, you can be dismissed without even going for an inquiry. Right now the provision is that if you dismiss an IAS or IPS, this has to be preceded with an inquiry. इंक्वायरी के बाद ही आप डिसमिस कर सकते हो. अगर सरकार ने बोल दिया जम्मू कश्मीर में बिना इंक्वायरी करे भी, there is a body commission. If the commission says he should be dismissed because of this, he will be dismissed. मतलब they are making it easy to remove the officers on what ground? Anti-national. ठीक है. उसके बाद let me just read the name of few people. Trinuma Singh, because civil servants are important part of bureaucracy. Very good. Custodial death, Ritvik. Corona was handled by civil servants. Sonali, बहुत ही बढ़िया. Biprajit, civil servants during COVID situation. Very good. मतलब आप सब में most of you are saying that during Corona, civil servants are performing very well. Appreciable. Very good answer on day one. But मैंने आपको पॉइंट बताया दूसरा. Lateral entry and reforms in civil services is the reason we can expect a question on civil services. अब one more area which can be the question or area of governance. एक और area है जो गवर्नेंस का एरिया है, उसको मैं नाम देता हूं ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस. ओके, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का मतलब ये है, नाउ इफ यू रीड द सिलेबस, आप बोलोगे ये वर्ड आ कहां से रहे? ये सिलेबस से आए. ऑल दीज वर्ड्स व्हिच आई एम ड्रॉपिंग राइट नाउ, दे हैव बीन मेंशन्ड इन द सिलेबस. ओपन द सिलेबस, यू विल गेट दीज वर्ड्स. ओके, ई गवर्नेंस इज मेंशन्ड इन द सिलेबस एंड बिलीव मी, दिस इज अगेन अ वेरी पोटेंशियल एरिया. नहीं, अब आप बोलोगे हर बात जो बोल रहे हैं पोटेंशियल बोल रहे हैं, मैं करूं क्या? सारी चीज न्यूज में, व्हाटएवर इज इन न्यूज इज अ पोटेंशियल एरिया. ई गवर्नेंस इज इन न्यूज हेवीली. जवाब दीजिए, ई गवर्नेंस पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्यों है? व्हाई डू एक्सपेक्ट? ई गवर्नेंस का मतलब है अप्लाइंग टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट वर्किंग, अप्लाइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, अप्लाइंग इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इज ई गवर्नेंस. So applying technology in government working is e-governance. सरकार के काम को टेक्नोलॉजी की हेल्प से किया जाए तो उसे e-governance कहते हैं. जवाब दीजिए, e-governance पे आपको क्वेश्चन आने की उम्मीद क्यों है? Why do you expect? पारस ने आंसर दिया था, बिकॉज सिविल सर्वेंट्स इंप्लीमेंट द पॉलिसीज. वेरी गुड.
Satvish Kayal, recent corruption related to civil servants like in Kerala. Very good. बहुत ही बढ़िया. Everybody is giving good answers. I'm so happy. हाँ जी बताएं कि why was e-governance in news? देखो जितने आंसर आप दोगे, more you answer, more your brain will work and your horizon will be broadened. Please answer why e-governance was in news. इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस न्यूज में क्यों था और आप उस पर क्वेश्चन एक्सपेक्ट क्यों करते हैं? प्लीज उसी पे रखिए. इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस मैंने यहां लिखा हुआ है, व्हाई यू एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन ई गवर्नेंस. इट्स अ पोटेंशियल एरिया इन एग्जाम. बहुत ही बढ़िया. भाषा भारती, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस ये बता रही है बिकॉज इट विल ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. वेरी गुड. भाषा भारती सेड दैट इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस विल ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी. ट्रू, दिस इज द बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस. बट मेरा सवाल ये था कि व्हाई वाज ई गवर्नेंस इन न्यूज? सुशांत, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन कोरोना क्राइसिस, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट. ये तो पुराना वाला आंसर है. नया आंसर, नया क्वेश्चन ये है कि व्हाई वाज ई गवर्नेंस अ पोटेंशियल एरिया फॉर दिस कमिंग एग्जाम? फॉर व्हाट रीजन इट वाज इन न्यूज? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस न्यूज में क्यों है? आपको क्या लगता है कि इस पे फोकस करना चाहिए ज्यादा? मैंने पहले बोला आपको कवर द होल सिलेबस बट फोकस मोर ऑन सम एरिया एंड दीज आर दोज एरियाज. ओके, ई गवर्नेंस पे क्वेश्चन आने की उम्मीद है. आपको ऐसा क्यों लगता है? आंसर दिया आशीष कुमार ने. पता नहीं मेरा नाम तो नहीं रिपीट कर रहे हो, पता नहीं. आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम मोर आशीष कुमार आल्सो इन द क्लास. ड्यू टू द पेंडेमिक मोस्ट ऑफ द वर्क वाज डन इलेक्ट्रॉनिकली. एक्सलेंट. अब इनका आंसर मैं एक्सलेंट इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि इनका नाम मेरा नाम मैच हो रहा है, ये आंसर भी है. उसके बाद मीनाक्षी यादव, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस एनहांसेस द स्पीड ऑफ डिलीवरी. बहुत ही बढ़िया. एनी अदर आंसर? व्हाट दे आर सेइंग इज दैट राइट नाउ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर क्लोज, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, but still classes are working because electronically it is being delivered. Corona crisis, DBT मतलब direct benefit transfer. नीति आयोग, my government, बहुत बढ़िया. ऋतिक, संकेत, let me give the right answer. These are the right answers, but let me simplify it. कोरोना क्राइसिस के दौरान अगर आपने सुना हो, one app was in news, one application was in news. एप्लीकेशन का नाम क्या था? आरोग्य सेतु ऐप. Government was going mad. Modi ji put so much stress, Arogya Setu, Arogya Setu, Arogya Setu, and they are giving you so much of information on the app who around you is infected. Is it not something beautiful? Government is communicating with you real time through this application, and when government is using technology, application technology, this is nothing but e-governance. पहली बात ये. दूसरी बात, in Delhi, the Delhi government brought a unique solution to fight corona. They said let's home isolate the people. Home isolate matlab let's not put people to hospital. Let's keep them in the home. If they are not very serious, let's keep the people in the home and ensure that they do not come out of the house, and within the house they are given treatment. The patient should be in home only, quarantined in home only, given treatment at home by doctors, but don't allow them to move out, because if they move out they spread the infection. For this, what was being done? आप जानते हैं, government collected the phone number of all the patients who are in home quarantine and they gave this number to Delhi police and told them monitor their movement. If somebody is moving out of the house, he will carry the mobile phone and location will tell that this person has violated the quarantine and action can be taken against him. Is it not a beautiful application of technology? और ये छोटी मोटी बातें हैं. जो असली बात है वो ये है, Mr. Modi for the last 1 year is focusing on something called as artificial intelligence. Artificial intelligence. What is artificial intelligence? People from science and tech will tell you. Artificial intelligence पे मोदी जी ने फोकस किया. Artificial intelligence, if used by government, is nothing but e-governance. Okay. For all that reason, question can be expected on e-governance. Question in governance can come on civil services, can come on e-governance, can come on the role of NGO. NGO. Okay. NGO के रोल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. If the role question came, the question is the governance. Question can also come on right to information. Okay. Question RTI के ऊपर भी आ सकता है. RTI के ऊपर क्यों आ सकता है? Reason
गवर्नमेंट ब्रॉट नंबर ऑफ चेंजेस इन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पे काफी सारे चेंजेस आ गए. दूसरी बात, मोदी जी फॉर्म्ड अ फंड का नाम था प्राइम मिनिस्टर केयर फंड. नाउ ही डिनाइड दैट आरटीआई इज नॉट द सोर्स बाय विच यू कैन नो हाउ मच मनी केम इन एंड वेयर वी स्पेंड द मनी. पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, कहां खर्च किया, हम नहीं बताएंगे और आप आरटीआई के थ्रू पूछ भी नहीं सकते. नाउ दिस रिलेट्स टू द इश्यू ऑफ ट्रांसपेरेंसी. अभी किसी बच्चे ने आंसर दिया था ट्रांसपेरेंसी का. तो दिस रिलेट्स टू द इश्यू ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट. आई थिंक पहला आंसर यही था, भाषा भारती. द इश्यू रिलेट्स टू ट्रांसपेरेंसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट. भैया, why are you hiding this information that who gave the money and where was the money spent? You should share that information with people. And here he particularly denied the role of RTI. उन्होंने बोला RTI is not the way by which you can ask how much money came in the fund and where the money was spent. कितना पैसा आया और कहां खर्च किया गया, ये RTI नहीं पूछ सकते आप. तो RTI का रोल आ गया. यहाँ पे RTI न्यूज में था, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं. ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा न्यूज में था, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, सो आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ, वेरी ब्रीफ आइडिया why a question comes in exam. Okay, so polity hint I gave you, governance hint I gave you, detailed syllabus is available online. You can take down the printout and go through it. IR will be dealt by somebody else, this will be dealt by somebody else. So this was the broad marks distribution which I wanted to tell you. अब है कि what kind of questions can come in exam. एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. एक बात मैं आपको बता दूं, in UPSC, please focus very, very, very carefully. In UPSC बहुत चीजें हैं जो बच्चों को 2-3 अटेम्प्ट खर्च करने के बाद मालूम पड़ता है. In UPSC, sometimes if you are not guided well, you waste 2-3 attempts and then you come to know, oh, this was the mantra. Current affairs is key. Current affairs is very important. There may be some people who work so hard, but they are not able to do well, particularly in mains. Why? करंट अफेयर्स वॉज वीक. उनको मालूम ही नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है. वो जो नोट्स दे दिए बस उसी को रट्टा लगा रहे हैं. भैया करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है ये भी मालूम होना चाहिए आपको. करंट अफेयर्स इज अ की एंड हाउ इट इज की, लेट मी टेल यू नाउ. देखिए समझिए इस बात को. अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन. आप ये बात समझिए. इफ आई एम कंपीटिंग इन अ पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन, शुड नॉट आई नो द नेचर ऑफ द कॉम्पिटिशन. मैं एग्जाम दे रहा हूं, मुझे उसकी नेचर ही पता नहीं है, तो मैं एग्जाम कैसे क्लियर करूंगा. इफ आई एम टेकिंग एन एग्जाम आई एम नॉट क्लियर अबाउट द क्वेश्चंस व्हिच कम इन एग्जाम, व्हाई अ क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन एग्जाम, विल आई बी एबल टू परफॉर्म? नो सर. Understand first of all the nature of questions which can be asked in exam. एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं ये आपको मालूम होना जरूरी है. और क्वेश्चन क्यों आते हैं अगर आपको ये मालूम पड़ गया तो यू बिकम अनबीटेबल विद सम मोर वर्क विच आई टेल यू आफ्टर सम टाइम. देखिए अब नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है. नेचर ऑफ क्वेश्चंस आर फॉर प्री एंड फॉर मेंस इज डिफरेंट. नेचर ऑफ क्वेश्चंस इन प्री एंड इन मेंस इज डिफरेंट. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि व्हाट इश्यूज आर इन न्यूज गिव यू अ हिंट दैट क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस एरिया. व्हाट इश्यूज आर इन न्यूज गिव यू अ हिंट कि क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस एरिया. एंड व्हाट इश्यूज आर इन न्यूज कैन डायरेक्टली बिकम अ क्वेश्चन इन मेंस. न्यूज में जो मुद्दे आ रहे हैं प्री में उनसे इंस्पायर होकर क्वेश्चन बन सकता है और मेंस में वो चीज एज इट इज आ सकती है. सेम थिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस. अब देखिए आप, आई गिव अ सैंपल. स्पीकर इज ए न्यूज. भाई स्पीकर न्यूज में है कि नहीं है? स्पीकर जानते हो ना, मैं वो उस स्पीकर की बात नहीं कर रहा हूं, हेलो हेलो करने वाला स्पीकर. स्पीकर मतलब द चेयरमैन ऑफ द स्टेट असेंबली, राजस्थान फॉर एग्जाम्पल.
Now, Rajasthan State Assembly Speaker was in news for various reasons. Government told the Speaker of Rajasthan, sir, call the session of the Assembly of Rajasthan and Gehlot will prove that he is in majority. Session बुलाओ, Gehlot जी प्रूव करेंगे कि सरकार मेरी है, इससे पहले एमएलए पलट जाए, जल्दी से बुला लो सेशन. भाई एमएलए है ना, एमएलए कैन टेक अ यू टर्न एनी टाइम. Somebody offered 10 crore there, somebody offered 10.5 here, somebody offered 11 there. Horse trading बोलते हैं इसको, पैसे दो, लॉयल्टी खरीद लो. Very bad. But anyways, now the speaker was in controversy because he denied calling the session initially, whereby the CM of Rajasthan could prove that maximum MLAs support him and they do not support Sachin Pilot. अभी पायलट वाला इशू हुआ था ना, आपको मालूम होगा इसके बारे में. तो speaker is in news. Expect a question on speaker in prelims, expect a question on speaker in mains, but the nature will be different. What difference will be this? In mains, sorry, in pre, the question can be this. Let me hypothetically create a question, then you understand this. एक question create करके दिखाता हूं आपको. वो आपसे पूछ सकता है कि who among the following administers oath on the speaker? स्पीकर को ओथ कौन दिलाता है? 4 ऑप्शन दे रहा है वो आपको, आप बताइएगा आंसर क्या है. Please tell me, these are the options. Who administers oath on the speaker? स्पीकर को ओथ कौन दिलाता है? Who gives the oath to the speaker? President, governor, pro tem speaker, nobody. What is the answer? स्पीकर को ओथ कौन दिलाता है? सिंपल. आपको आंसर मालूम है नहीं है, एफर्ट मारने में कोई दिक्कत नहीं है. इवन इफ यू गिव अ रॉन्ग आंसर, नोबडी विल जज यू, बिलीव मी. आई विल नॉट जज यू. आप गलत आंसर दो, मैं आपको नेगेटिवली नहीं देखने वाला हूं. सही आंसर दोगे तो भी कोई खास फायदा होगा नहीं आपको, बट आपकी तैयारी में फायदा मिलेगा. I am not going to judge you, so please answer without any fear, without any sense of apprehension. स्पीकर को ओथ कौन दिलाता है? ये क्वेश्चन प्री में आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि ये न्यूज में था. हालांकि इतना सिंपल भी नहीं होता. समटाइम दे आस्क वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बट दिस इज नॉट द टाइम टू आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस. प्लीज टेल मी. हाँ, फर्स्ट आंसर इज गवर्नर. गवर्नर दिलाते हैं. और कोई आंसर? Who administers the oath on the speaker? What is the answer? स्पीकर को ओथ कौन दिलाता है? जवाब दीजिए. Who administers the oath on the speaker? Okay, one मतलब president. Anybody else? Who administers the pro tem speaker? Okay, people are giving the answers. काफी लोग कह रहे हैं one, कोई कह रहा है गवर्नर, कोई कह रहा है pro tem speaker. What is the answer? साहिल साहब कह रहे हैं नोबडी. तो कोई ओथ नहीं दिलाता. आंसर इज नोबडी, बिकॉज स्पीकर डज नॉट टेक ओथ एज स्पीकर. स्पीकर की कोई ओथ होती ही नहीं है, तो ओथ दिलाने का तो स्कोप ही नहीं है. सो दिस इज आंसर. बट बिलीव मी, मैंने टेस्ट किया हुआ है. मैक्सिमम, आपने तो अभी कोर्स किया भी नहीं, यू हैव नॉट इवन गॉन थ्रू द कोर्स. द पीपल हु हैव गॉन थ्रू द कोर्स, आई आस्क द सेम क्वेश्चन टू देम. मैक्सिमम लोग बोलते हैं सर प्रो टेम स्पीकर, प्रो टेम स्पीकर. कोई कहता है गवर्नर. But answer is nobody because he does not take oath as speaker. Okay, so here he can catch you on this question, but understand this, that this question is inspired by current affairs, but this is a traditional question, static question. ये question inspired तो है current affairs से, मगर ये current affairs का question नहीं है. Question है traditional knowledge का ही है. The question is of traditional area, and here the information is fixed. Understand the information, answer in the exam. Okay, so in prelims, questions will be inspired by current events, but the question will belong to traditional area. Traditional area matlab static area. Static area means the information as such is given in constitution. You have to understand the information and answer. It's not a question of current affairs. It's a current inspired traditional question. This is the question which are asked in pre. These are the questions which are asked in pre. Okay, but if you take the same year, the same means
और आप उसी साल मेंस देते हो तो वो आपसे क्या पूछ लेगा, क्वेश्चन बना देगा। देखो अब क्या पूछ रहा है आपसे, it's a simpler version of the question which can actually come in exam, though this can also come in exam। मगर ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया है ये थोड़ा सिंपल किया है ताकि आप समझ पाए इसको अभी, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे, इन द लाइट ऑफ रिसेंट कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ स्पीकर सजेस्ट द रिफॉर्म्स इन द ऑफिस। ओके, अब यहां पे देखो बात क्या है, दिस इज नॉट अ करंट इंस्पायर्ड क्वेश्चन, दिस इज अ करंट क्वेश्चन। उसने साफ साफ पूछा है कि अभी हुआ क्या है और कैसे इसको इंप्रूव किया जाए। ओनली यू कैन आंसर इट व्हेन यू हैव बीन थॉरो विद द करंट इवेंट्स। अभी आपको ये मालूम ही नहीं है कि ऑफिस स्पीकर में हुआ क्या क्या है। इफ यू आर नॉट अवेयर व्हाट हैज हैपेंड इन द ऑफिस ऑफ स्पीकर इन कर्नाटका, इन मणिपुर, इन गोवा, इन यूपी, इन राजस्थान, देन हाउ विल यू आंसर? सो टू आंसर दिस यू शुड बी नोइंग करंट इवेंट्स एंड अलॉन्ग विद, अंडरस्टैंड दिस, करंट इवेंट्स तो आपको मालूम होना ही चाहिए, अलॉन्ग विद दिस ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। देयर क्वेश्चन इज ऑन ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन प्री में, हियर क्वेश्चन विल बी अ मिक्सचर ऑफ करंट एंड ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड ओनली व्हेन योर बेसिक्स आर क्लियर रिगार्डिंग द रोल ऑफ स्पीकर एंड यू आर क्लियर अबाउट व्हाट हैज हैपेंड रिसेंटली। आप तभी तो आंसर कर पाओगे ना जब आपको मालूम है कि स्पीकर का रोल क्या है, कमियां क्या है और क्या एक्सपेक्टेड था और अभी हुआ क्या है, तभी आप रिफॉर्म दे पाओगे। मोरओवर रिफॉर्म्स विल नॉट बी इमेजिन्ड बाय यू, रिफॉर्म्स यू विल डिस्कस व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड इन द एरिया। फॉर एग्जांपल अशोक गोस्वामी कमिटी, सॉरी दिनेश गोस्वामी कमिटी हैज ऑलरेडी गिवन सम सजेशंस। तो आपको सजेशन वहां पे जनरेट नहीं करने, आपको उस कमेटी के सजेशन आप मेंशन कर सकते हो कि दिनेश गोस्वामी कमिटी सेड दिस रिगार्डिंग स्पीकर। अंडरस्टूड द पॉइंट और नॉट? The questions which come in exam means will be current inspired, current questions requiring the traditional knowledge also. Now let me give one more example. एक एग्जाम्पल मैं आपको और भी देता हूं, देखिए, अंडरस्टैंड दिस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मैंने क्वेश्चन जनरेट किया आपके सामने है, आई हैव जनरेटेड अ क्वेश्चन, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू। द क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशनली, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, आई एम नॉट टीचिंग यू, अंडरस्टैंड दिस। कॉन्स्टिट्यूशनली विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स हैव द पावर टू डील with the issue of contempt of court? Contempt of court is something which is in news. Now because it is in news, you can expect a question on this, but if the question comes, question will be traditional question, static question. ये question तो traditional knowledge है ना, static question है ना, ये तो वही पूछा है उसने आपसे। वो बोल रहा है कि constitutionally इन सारे कोर्ट्स में से किस कोर्ट के पास contempt of court
को डील करने की पावर है. प्लीज आंसर. आई हैव गिवन यू 5 ऑप्शंस, नॉट 4. A, B, C, D, E. प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डील करने के लिए किस कोर्ट के पास पावर है? सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास, या सबके पास? प्लीज आंसर. विच कोर्ट हैज द पावर टू डील विथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और विच कोर्ट हैज द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? Please answer. Please answer. I'm waiting for the answers. Which court has the power to punish for contempt of court? किस कोर्ट के पास contempt of court की punishment की power है? Supreme Court only, High Court only, Supreme Court, High Court, subordinate court, or all? Okay, first answer is Supreme Court only. Second answer is by Achal, all. Reena Selvaraj, A and B. Kushal Singh, A and B. Ruchika, A and B. Shresth Priya, A and B. Sure किसका नाम है? All किसी का नाम श्योर भी है यहां पे? ओके. पारस, डी मतलब ए एंड बी. बहुत ही बढ़िया. लक्ष्य, ए एंड बी, बहुत ही बढ़िया. संविधान ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को दिए, बाकी कोर्ट्स को नहीं दिए. सो दिस पावर इज अवेलेबल ओनली विद सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. सो आंसर इज डी. नाउ इफ द क्वेश्चन इज कमिंग इन द एग्जाम, द क्वेश्चन इज कमिंग बिकॉज इट इज इन न्यूज. प्रशांत भूषण is now facing the wrath of contempt of court proceeding by the Supreme Court. प्रशांत भूषण ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कोर्ट नाराज हो गया और कोर्ट ने उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्ज लगा दिए. What is contempt of court? I will explain you when I take judiciary. Now I will not explain the things, but I am just touching some areas. Contempt of court पे क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ट्रेडिशनल स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है. बट इफ आफ्टर क्लियरिंग द प्री यू टेक द मेंस, व्हाट कैन बी द नेचर ऑफ क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोल दिया उन्होंने, इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, तो क्वेश्चन ये पूछ लिया, इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप देयर शुड नॉट बी एनी प्लेस फॉर प्रोविजंस लाइक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. कमेंट कीपिंग इन माइंड द रिसेंट इवेंट्स. मतलब ही इज आस्किंग यू दैट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट शुड बी रिमूव्ड एज अ कॉन्सेप्ट. जो कोर्ट है ना, जो सबको पनिशमेंट कर देता है अपनी कंटेम्प्ट के लिए, द कोर्ट हैज द पावर टू पनिश यू फॉर इट्स कंटेम्प्ट. दिस सप्रेसेस द